Okay, in this chapter, we are going to discuss cell reference, range, and functions. Cell reference, as we have discussed yesterday in previous session, that the combination of cell, a column and row, where the column interact, will be denoted as a cell reference, like C4 represent you, C column, fourth row, right? So this is a cell reference. Then range and range name, entering a formula and copying a formula. This is the objective of this session, right? Okay. Okay, so whenever you are writing A10, that means you are in column A and row number 10, right? Okay. Suppose this is my Excel sheet. I have written certain number over here. One, 5, 6, 8, 10, 7, 4. Suppose this is a table I have got, right? Good morning, sir. This is Malay here. Yeah, Malay. You have to count on time. Yeah, sir, Don't but I forget. was having some technical problems, so I talked with Bashir, sir, about Sure. that, and Okay, he gave me the link after that. No worries. Chalo. Yeah, sir. Now, if I'm writing equal to A1, that means I want a cell's value which is in A1, right? If I'm writing A1, then Okay. fine. This is a simple thing. Now, if you are writing, suppose you want to do the sum of two cells, then what you will do? Sum, then you will select one cell, that is A1, then comma and A50, C2 suppose. So what this formula will do, it will sum up 1 and 15. The result will be 16, right? So this is how you can get your cell address also. Second example, suppose I want the range of A10 to C17, sorry, A1 to C7. Then what I need to do? Equal to sum A1, and you have to put colon and C7. What this will do? A1 to C7, entire table will be taken in consideration and it will sum up all the values. Got it? Simple. Yes, sir. A1, then Yes, sir. A1 comma C2, and then A1 60. colon C1. Okay. Fine? Okay, sir, got it. Okay. Now, suppose I am writing like equal to sum A1 colon D1. What this will do? This will take the data of first row. Right? A1 Right. to B1. It won't take A2 or D2. Only first column will be, first row will be taken. Okay. So this is how you can use your cell references in a different way. One more is, suppose I am taking A1 column A7, then this will take only first column, right? This is how you can use Right. your references, single cell, two cells or three cells, continuous in a rows, continue in a column or entire table, right? जैसे Okay. भी आपको चाहिए आप इस तरह से रेफरेंस दे सकते हो, right? Okay. ठीक है. Now, the reference we have used here was the relative reference. Relative means क्या हुआ? Suppose यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 only, right? And इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो क्या होगा? किसको आइडिया है? सपोज A1 में जो भी फॉर्मूला है एक ही वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करते हो तो ये क्या करेगा? यहाँ पे A1 का हो जाएगा B1, then C1, then D1, then E1, राइट? मतलब कि जैसे जैसे आप कॉपी या तो फिल कर रहे हो ऑटो फिल, तो रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है? रिलेटिवली चेंज होता है। यहाँ पे दोनों चीजें रिलेटिव हैं। एक है आपका A मीन्स आपका जो भी कॉलम लेटर है वो, और 1 जो कि आपका
रो नंबर है, राइट। दो रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, एक है हमारा कॉलम का रेफरेंस, दूसरा है हमारा रो का रेफरेंस। हम दोनों को रिलेटिवली यूज कर रहे हैं, तो आइदर यू कॉपी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यू गो टॉप टू बॉटम। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो A1 का हो जाएगा A2, A3 एंड सो ऑन। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका कॉलम चेंज होगा, A का B हो जाएगा, B का C हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका रो नंबर चेंज होगा, राइट। ओके ओके, नाउ लेट्स डू वन स्मॉल एक्सरसाइज। आपने मुझे बताया था कि एक्सेल में हम लोग रिजल्ट बना सकते हैं, राइट। जी चलिए तो बनाते हैं थोड़े यस रिजल्ट। सपोज आई गॉट नेम ऑफ स्टूडेंट, देन उसका आपके कोई भी सब्जेक्ट बोलिए 4। मैथ मैथ्स, इंग्लिश अरे ऐसे नहीं है, सीए के बोलो। Accounts, हाँ, FM, कॉस्ट FM, Cost and management account. taxation. टैक्सेशन, चलो। Hmm. चौथा Yeah, कोई भी एक मैनेजमेंट अकाउंट Audit. ऑडिट। लॉ कोई भी एक ग्रुप में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक नहीं? कितने होते हैं? 4. 4 सब्जेक्ट होते हैं। चार चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई 5 ब्राइट स्टूडेंट के नाम ले लेते हैं जो टॉप करेंगे इस बार। अब मार्क्स कितने होते हैं एक सब्जेक्ट के टोटल? Out of 100. आउट ऑफ 100 होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सपोज यहाँ पे आए हैं 56, ठीक है। यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 49 और यहाँ पे है आपको सपोज 75, ठीक है। इक्वल टू A+2। सपोज दिस इज आवर स्ट्रक्चर। अब आपका मुझे रिजल्ट दिखाना है यहाँ पे। ओके, सपोज मुझे रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया है हमारा? 50% है ना? Individual 40% and Individual 40 aggregate. and aggregate 50%. एग्रीगेट 50%, हम एग्रीगेट ही अभी चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कैसे मिलेगा एग्रीगेट वैल्यू? एग्रीगेट वैल्यू कैसे मिलेगा? Total. So, हाँ, Sum यू हैव टू डू द सम ऑफ ऑल द मार्क्स, Sum. राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोगों ने सम कर दिया। ओके, ब्रैकेट क्लोज देन 50% है या नहीं, कैसे पता चलेगा? परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर। कैसे करेंगे? इक्वल का साइन हम्म, फिर परसेंटेज इक्वल का साइन फिर परसेंटेज का साइन। 240 divided by 400. सॉरी, 240 divided by 400. इंटू यहाँ 4 पे यहाँ पे ही कर सकते थे ना, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। 0.6 आया। अब इसको परसेंटेज का साइन दे दूं, ठीक है। ये परसेंटेज आ गया, फाइन। अब Fine. मुझे रिजल्ट चेक करना है यहाँ पे। ये तो हो गया मार्क्स आपके। अब मुझे रिजल्ट दिखाना है, पास है या फेल है। तो मैं रिजल्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे रिजल्ट का क्राइटेरिया आपका क्या है यहाँ पे? 50, Aggregate 50. aggregate 50%, 15, ठीक है। individual 40. तो 50% यहाँ पे मैंने रख दिया, ये 0.5 रखता है, सॉरी 50%, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है कि मेरे मार्क्स 50 से कम है या ज्यादा है, जो भी है तो मैं पास दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। इफ ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे आपको 3 तरह की आर्गुमेंट देनी है। फर्स्ट टेस्ट लॉजिकल टेस्ट, मतलब क्या टेस्ट आपको करना है। देन वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हुई तो क्या रिजल्ट देना है, और अगर आपका क्राइटेरिया फॉल्स हुआ तो क्या देना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब 50 या उससे ऊपर है, मतलब ये सेल H1 सेल, फाइन। तो मैं F2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H1, अगर ये है देन आई वांट टू शो पास, और
फेल। फेल। ओके, ब्रैकेट और एंटर। तो ये पास है, दिखा रहा है। सपोज मार्क्स चेंज करते हैं, 60 की जगह 30 कर देते हैं, यहाँ पे 26 कर देते हैं, तो 45 फेल हो गया, बराबर है। 36 में भी फेल है, 38, 45। अभी भी फेल है, फेल नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पे। सर कॉस्ट में 30 है इसके वजह से। तो वो कहाँ चेक ही किया अपन ने, तो एग्रीगेट ही चेक किया ना। हमने कहाँ कॉस्ट देखा ही है, हमने इंडिविजुअली कितना है वो तो देखा ही नहीं है ना, वो कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने राउंडिंग कर लिया, यहाँ पे हमको भी राउंड देना पड़ेगा, राउंड एक डिजिट तक का राउंड देना है खाली, तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब तक ये पास Yes, है। sir. अभी सपोज इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, यहां से इसको ड्रैग करते हैं, तो सबके सब पास हो रहे हैं। सपोज इधर के मार्क्स मैं करता हूं 22, ये फेल होना चाहिए था सेकेंड वाला स्टूडेंट। एक्चुअली सब Yes. वाले पीछे वाले सारे फेल होने चाहिए थे, फिर भी पास दिखा रहा है। जी। क्यों? इंडिविजुअल का नहीं किया है। नहीं, इंडिविजुअल का तो हमको देखना दूसरा ही ना, कंडीशन नहीं किया है ना, इंडिविजुअल नहीं, का 40 से वो उसको थोड़ी मालूम है कि तुम सीए स्टूडेंट्स हो। ठीक है, उनको ऐसा एक्सेल तो क्या जानता है, जो क्राइटेरिया आप दे रहे हो वो उतना ही समझता है। आपने क्या क्राइटेरिया दिया कि आपका जो टोटल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आपका जो सम आ रहा है B2 से लेके E2, ठीक है, उसको 400 से डिवाइड किया, और जो भी परसेंटेज आया आपका उसको आपको इसके साथ मैच करना है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो पास, लेस देन है तो फेल। तो यहाँ पे लेस देन हुआ ना, ग्रेटर देन तो हुआ नहीं। हाँ, ठीक है, फिर भी फेल पास चाहिए दिखा, वहां पे। फिर भी पास दिखा रहा है। जी। लेट्स सी क्यों ऐसा हो रहा है। अभी फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा सर, फिर वो ग्रेटर देन का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो कम है ना। क्या कम है? आप वही तो, हम लोगों ने तो कंडीशन एक ही दी, अलग थोड़ी दी। हम लोगों ने क्या कंडीशन दी, F3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू H2। H2। हमारा रिजल्ट किस में है, हमने जी जो में। क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया H1 H1 में दिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या हुआ, F2 इज ग्रेटर देन H1 पहले सेल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला दिया, देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट ड्रैग इट और कॉपी पेस्ट किया हम लोगों ने। तो क्या जी। हो जाता है, यहाँ पे F2 का तो ठीक है, आपको F3 करना है अपेक्षा के रिजल्ट के लिए, बट H1 आपको क्या चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। जी। ठीक है, दूसरे सेल के लिए भी H1 ही चाहिए, यहाँ पे भी H1 ही चाहिए, यहाँ पे भी H1 चाहिए। अब ये चेक क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे तो H1 के लिए चेक कर रहा है, यहाँ पे H2 के लिए चेक कर रहा है। H2 में तो 0 है, 0 होगा तो ऑब्वियस है कि वो किसी भी वैल्यू से बड़ी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, H1 को आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना होगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब ऐसा रेफरेंस जिसको आप कॉपी करो, ड्रैग करो, कुछ भी करो, इट विल रिमेन सेम। ओके। राइट, तो किसी Right. सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको क्या करना है, उस सेल का जो भी सेल है H और 1 उसके बीच में कर्सर को रखना है, देन यू हैव टू प्रेस F4 की। फाइन, F4 Fine. की, then H1 will become $H, $1. Now both these things, H column and first row will get absolute. Suppose one more time if I am pressing F4 key, then it will make H $1. This means यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो जो है that is absolute, whereas H is relative. मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इसमें, तो H1 का I1 होगा या तो G1 होगा, but one will remain same. One more F4, then it will make $H1. Now this time your H column is
absolute, whereas 1 is relative. Again one more F4 की, जो आपका relative reference था वैसा हो गया. तो one more F4, $H, $1. समझ में आया है अब तक या नहीं आया है? समझे सर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है. वो डॉलर वाला एक बार समझो ना सर फिर हाँ, से. डॉलर वाला एक बार वापस से समझाता हूँ. रिपीट कर दीजिए सर। वापस से चलना है, पूरा वापस से करते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको क्या करना था कि F2 जो है वो H1 से बड़ा है तो पास, नहीं तो फेल. ठीक है, यहाँ पे भी मुझे क्या करना था, सपोज मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया. यहाँ तक समझ में आया था पास वाला? जी. ठीक है. अब दूसरे सेल के लिए भी हमको क्या करना था, H2 की जगह यहाँ पे H1 करना था, यहाँ पे भी H1 करना था. मतलब हमको क्या चाहिए, हर जगह पे हमको कंपेयर तो H1 से ही करना है. तो हम ये चाहते थे कि जब भी ये फॉर्मूला हम लोग कॉपी पेस्ट करें या ड्रैग करें नीचे, तो F2 की वैल्यू F3 हो जाए. जैसे अपेक्षा निशार जो है उसका रिजल्ट अगर चेक कर रहे हैं तो मार्क्स मुझे ऑब्वियस है कि उसी के देखने होंगे, बट मेरा जो जी. क्राइटेरिया है वो मेरा H1 सेल में ही है. तो दैट शुड रिमेन एब्सोल्यूट और दैट शुड गेट फ्रीज. तो हमको क्या करना है, H और 1 के बीच में माउस रखना है और फंक्शन की जो होती है आपकी F4 उसको आपको प्रेस करना है. ओके. ठीक है, जैसे ही आप F4 की प्रेस करोगे H1 will become $H, $1. डॉलर साइन स्टैंड्स फॉर द एब्सोल्यूट. ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूला को हम लोग कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो H1 will remain fixed. इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करता हूं तो अब क्या होगा, F2 का आप देखो F3 हो गया. ठीक है, बट $H, $1 जो है वो फिक्स रहा. क्लियर? यस. Yes, कोई sir. डाउट है? कॉन्फिडेंस नहीं है वो चीज का. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आप एक काम करो, इस चीज को आप अपने हिसाब से करो यहाँ पे आपके एंड पे. ओके. फाइन. दिस इज योर रिलेटिव रेफरेंस दैट मे चेंज एज दे आर कॉपीड एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस स्टे द सेम एज दे आर कॉपीड. ये आप देख सकते हो, एक फॉर्मूला दिया इन्होंने इधर, इक्वल टू C4 into $D, $9. when they are copying it or while they are dragging it, so C4 will become C5 whereas D9 remain same. ओके. So this is your relative reference. Every relative reference in a formula automatically changes when the formula is copied down a column or across a row. This is why is the first lesson you could copy the January formula जो हम लोगों ने किया था वो. ठीक है. Now absolute reference, ये जहाँ पे डॉलर साइन आ जाएगा, इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल. आपको एडिटिंग मोड में जाना है उस सेल में और D और 9 के बीच में माउस रखना है, देन यू हैव टू प्रेस F4 की, or you can use mixed like this. Okay, now range. रेंज हम लोगों ने यूज किया था लास्ट टाइम, आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, कुछ पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट किया था और उसका नाम दे दिया नेम बॉक्स में जाके. राइट? जी. ओके, तो मिनिमम रेंज कैन बी अ सिंगल सेल. आप किसी एक सिंगल सेल को भी नाम दे सकते हो. जैसे यहाँ पे ये जो सेल है मेरा, उसका नाम मैं दे सकता हूं रिजल्ट. सर आप दिख नहीं रहे हो. मैं नहीं दिख रहा हूँ या स्क्रीन नहीं दिख रही? आप दिख नहीं रहे हो. मेरे को देख के कोई काम नहीं है ना, स्क्रीन देखना है अभी आपको. ठीक है, रिजल्ट क्राइटेरिया. ओके, H1 को कहीं पे यूज किया होगा. ओके, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने 50% ऐसे लिख दिया और इसको मुझे बनाना है क्राइटेरिया. ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, क्राइटेरिया. अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सेल आई कैन डायरेक्टली राइट क्राइटेरिया. एंटर. नाउ इफ यू विल ड्रैग इट तो क्राइटेरिया वोंट चेंज, वो सेम ही रहेगा सब जगह पे. ठीक है, जो मेरा रेंज है that will work as a absolute cell reference. ठीक है, a range is a rectangular group of cells. The smallest range is a single cell and the largest range includes all the cells in the worksheet.
right? A range can include cells from same seat or cells from adjacent seat. उसके कुछ रूल्स है, रेंज का नाम आप क्या रख सकते हो उसके लिए सर्टेन रूल्स है. नेम्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड इजियर टू रिमेंबर देन सेल एड्रेस. ये बेनिफिट है उसका कि आप नाम कहीं पे भी याद रख सकते हो. अगर दूसरी सीट में भी मुझे ये यूज करना है तो मुझे सेल एड्रेस याद नहीं होगा, बट मुझे वो नाम याद होगा, क्राइटेरिया. लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था ये वाली में, ठीक है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इन सब सेल को सिलेक्ट करके इसका नाम क्या दे दिया था, जनवरी, ठीक है. इसको फरवरी दिया था, इसको मार्च दिया था. आप किसी भी सेल में इसको यूज करना है तो नेम्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव देन सेल एड्रेस, राइट. तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. When a cell moves, the name moves with it. अगर आप इस सेल को मूव करते हो, यहाँ से इन सेल्स को उठा के आप अगर यहाँ पे रख देते हो तो नेम भी उसके साथ मूव हो गया. देखिए वहां पे नहीं रहा, अब इन सेल का नाम भी जनवरी ही रहा, ठीक है. तो अगर आप अपने सेल्स को मूव करते हो तो नेम भी उसके साथ मूव हो जाएगा. गॉट इट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है. Now you can use a name in place of cell or range address in a formula or function. We have already used it. ठीक है. आप अपने cell reference की जगह you can use name. When you copy a formula that uses a name, the effect is same as using an absolute cell reference. एक मिनट. हाँ, ठीक है. आपका जो नाम होगा, जो भी आप रेंज का नाम देते हो, वो 255 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, राइट. इट कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स एंड पीरियड्स. यही 4 तरह के कैरेक्टर जो हैं वो आप यूज कर सकते हो, राइट. इसके अलावा क्या किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ नेम ऑफ रेंज, राइट. द नेम मस्ट बिगिन विथ आइदर लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर. मतलब के आपका नाम जो है वो नंबर या तो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए. यू कैन नॉट यूज स्पेस, कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट. ये सब चीजें आप यूज नहीं कर सकते हो. नेम कैन नॉट बी अ वैलिड सेल एड्रेस. किसी भी सेल का एड्रेस, जैसे आपको क्या मन किया कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे F8 सेल, इसका नाम अगर मैं जाके A1 दे दूं तो वो नहीं लेगा, राइट. क्योंकि A1 ऑलरेडी एक वैलिड सेल एड्रेस है. जब आप किसी भी रेंज का नाम अगर उस किसी भी तरह का सेल एड्रेस देते हो, देन एक्सेल विल गेट कंफ्यूज कि जब भी आप उसको कॉल करोगे तो उसको एक्चुअल वो सेल एड्रेस कॉल करना है या आपका रेंज कॉल करना है, राइट. तो अलाउ ही नहीं रखा है एक्सेल ने. आपको वैलिड सेल एड्रेस जो भी है उसको आप नेम रेंज में यूज नहीं कर सकते हो. एंड नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव. आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, दैट डजंट मैटर, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. तो आप जैन स्मॉल में लिखो या जैन कैपिटल में लिखो, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है. तो दिस आर द रूल्स फॉर रेंज नेम, ये आपको फॉलो करने होंगे. एनी क्वेरीज? नहीं. नहीं, ठीक है. ये सिंपल चीजें हैं. नाउ एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल लिया था. इन्होंने क्या किया है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 क्वार्टर का डेटा है मेरे पास, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई का. नाउ मुझे इनका सम करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली आई नीड टू सिलेक्ट दिस 4 सेल्स, लाइक जो 17 से लेके 28 सेल हैं दिल्ली में, उनको सिलेक्ट करके मैंने उनका नेम बॉक्स में जाके नाम क्या दे दिया, दिल्ली. नाउ व्हेन आई एम डूइंग इक्वल टू सम दिल्ली, तो वो क्या करेगा, दिल्ली के जितने भी वैल्यू होंगे उनका टोटल कर देगा. ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है. और यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, इक्वल टू सम ऑफ जैन सेल्स. तो जनवरी सेल्स के जो भी डेटा थे उनको मैंने एक नाम दे दिया एंड उनको मैं यूज कर रहा हूँ. देन टोटल सेल जो भी है और टैक्स रेट जो भी है उसको भी मैंने नाम दे दिए रेंज के, और उनको सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. फाइन. नाउ दिस इज योर, जब भी आपको फॉर्मूला लिखना है एक्सेल में, यू हैव टू स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन एंड देन यू हैव टू फॉलो बाय नंबर्स, टैक्स, सेल रेफरेंस और ऑपरेटर. जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने इक्वल टू, आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, आप सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन, प्लस, जो भी आपके ऑपरेटर हैं वो सब चीजें आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला में. जो भी फॉर्मूला आपका होगा दैट यू कैन सी इन फॉर्मूला बार, राइट. What are the formula operators? Which kind of operators you can use in formula? तो 2 तरह के ऑपरेटर बेसिकली रहते हैं. एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर
सेकेंड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल कौन कौन से हैं, जैसे इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, नॉट इक्वल। जब भी आप इफ का यूज करोगे या तो किसी भी तरह की कंडीशन चेक करनी है आपको, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर, राइट। Whenever you want to check any kind of a condition, you need to use logical operator in your formula. Okay. It can be Okay, greater sir. than, less than, greater, equal, less equal, not equal मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जब भी आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना है, यू कैन यूज प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज और एक्सपोनेंशियल, राइट। These are the different kinds of arithmetic operation that you can use in your formula. Like this, part of formula, जैसे पाई की एक वैल्यू होती है 3.142, right? तो पाई इंटू a2 मीन्स a2 कोई सेल है जिसकी वैल्यू रेज टू 2, एक्सपोनेंशियल क्या करता है, पावर ऑफ 2, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेटर यूज करना है, तो दैट विल मेक a2 रेज टू 2 और उसको मल्टीप्लाई करेगा पाई की वैल्यू के साथ। फाइन Fine. हाउ टू एंटर अ फॉर्मूला, ये बेसिक चीज है जो आप जानते हो, इन्होंने पूरा लिख के दिया है कि क्लिक अ सेल वैल्यू का टाइप इक्वल टू साइन, देन योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, एंड जब भी आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए आपको सिंपली एंटर की दबाना है, तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। हेलो या सर, नीरज बाहर गया है सर, उसका ऐड करिए ना सर, उसका मैसेज आया मुझे। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है मेरे को, एक मिनट। रिक्वेस्ट आया नहीं है उसका मुझे। मैसेज डाला है सर कि रिक्वेस्ट सेंड की है। ओके, ठीक है, इज इन नाउ। Okay, so this is how you can enter a formula. Okay, and same way point and click formula by using mouse. If you want to enter a formula, simply use mouse से वहां पे जाके click करो, equal to लिखो and then do all these things. That is okay. Now auto sum. ये सिंबल आपके के सारे जो एक्सेल का होम स्क्रीन है उसमें एडिटिंग टैब में आपको इस तरह का एक सिग्मा का सिंबल मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑटो सम करता है, मतलब जितनी भी वैल्यू आपने डाली है ऊपर उन सब का ऑटो सम करना है, तो दो रास्ते हैं। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज हैं 1 से लेके 31। इफ आई वांट टू डू द सम ऑफ ऑल दिस थिंग्स, व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट आई कैन डू इज सिंपली यहाँ पे माउस रखना है आपको, और ये सिग्मा का जो सिंबल है ऑटो सम का, उसको आपको क्लिक कर देना है। तो क्या करेगा, ऊपर के जितने भी सेल है उनका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेगा, एंड यू कैन प्रेस एंटर, दिस विल मेक ऑटो सम, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, ये ऑटो सम है। यस सर। तो सिलेक्ट करना है, मतलब जहां पे भी आपको सम करना है, Yes, जो sir. भी वैल्यूज आपकी खत्म हो रही हैं, सिलेक्ट करिए और क्लिक ऑन ऑटो सम, ठीक है। और यू कैन यूज अ शॉर्टकट की अल्टर प्लस इक्वल। अल्टर प्लस इक्वल, हाँ, अल्टर और इक्वल टू का साइन एक साथ दबाना है, यस सर। ठीक है। अल्टर और इक्वल इन दोनों को साथ में दबाना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सम के लिए अल्टर और इक्वल को एक साथ दबाना है, या तो ऑटो सम कर सकते हो आप। और दिस इज हाउ यू कैन यूज योर ऑटो सम फीचर। नाउ फंक्शंस, ओके।